Hello everyone, my name is Hitendra Chaudhary and in this video we will be talking about a survey which is done by National Family Health Survey, and we've been waiting for this survey for so long and finally this survey is out. And through this survey we'll be talking about some facts and some very important facts, like we'll be talking about the total fertility rate, we'll be talking about the overall fertility rate, and the most important thing is this, we'll be talking about the population trend in different religious communities. And the one thing that is the very big highlight of this survey is this, because most of people in our society they think that in Muslim community they are giving birth to more children as compared to other communities, but this survey shows that this is absolutely incorrect. Even the sharpest decline of the fertility is amongst the Muslim population. So let's get started. But the first thing that we should know is about what is this survey, how this is done and all that. Look, National Family Health Survey जो होता है, this is done by मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर. तो इस मिनिस्ट्री के अंदर में किया जाता है, यानी कि ये एक गवर्नमेंट का एक डेटा प्रोवाइड कराता है. सो थ्रू दिस सर्वे एक्चुअली इट इज नॉट अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन विच इज डन. Many renowned international organizations like UNICEF, UNFPA, they are also engaged in this survey. और इस सर्वे से सरकार को ये पता चलता है कि that which type of policies we should take for our population, like in terms of nutrition, in terms of quality education, in terms of the health standards and everything. और पहली बार ये सर्वे किया गया था 1992-1993 में, और इस बार जो किया गया है that was in 2019 and 21, and this is such a fifth सर्वे. तो इस सर्वे की फाइंडिंग क्या है, क्या इसको इंटरेस्टिंग चीज हमें यहाँ पे मिली है, देखिए. उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू सम कॉन्सेप्ट. लुक, there is a concept which is called fertility. Like fertility means that during a lifetime, how many births are given or how many babies are born by a woman. That is the meaning of fertility. And the total fertility means that how many children overall are born out of a woman through her life. That is the meaning of total fertility rate. Here I would like to tell you one more concept which is called replacement levels. Look, if total fertility rate is 2.1, which means that every woman is producing 2 children, it means the children are replacing their parents. When that stage is reached, which is 2.1, it means that that is the replacement level of population. If a country achieves 2.1 total fertility rate, it means that now population has become stable and it is not going to increase any further, because parents are replaced exactly by their children. So that 2.1 total fertility rate is actually the goal of our government, because we do not want our population to rise exponentially, we want our population to be stable. तो ये 2.1 जो है ना वो गवर्नमेंट का टारगेट था, और ये जो अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है ये हमें इसी के बारे में बताता है. एक्चुअली द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो इज दिस, इंडिया ने ऑलरेडी अपना रिप्लेसमेंट लेवल यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 अचीव कर लिया है. इवन हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है फिलहाल वो 2.0 है. इसका मतलब रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे हम लोगों ने अचीव कर लिया है. यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो हैं जो रिलीजन के हिसाब से जो ऑब्जर्व की गई हैं वो ये हैं. देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी की जो फर्टिलिटी रेट है इस समय दैट इज 2.3, which is just above the replacement level. 2015 and 16 when National Family Health Survey 4 was done, it was 2.6. It means the fertility rate amongst Muslim community is decreasing. But the interesting thing is this. The first National Family Health Survey was done in 1990 to 1993. At that point of time, in Muslim community, fertility rate was very high. It was 4.4. Yani on an average, one Muslim woman was giving birth to 4.4 children. Now you may ask, what is this 4.4? Why not 4? Why not 5? Look, जितने बच्चे पैदा होते हैं वो सब सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, उसमें से कुछ बच्चों की डेथ भी हो जाती है, राइट, विच इज कॉल्ड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट. इसीलिए हम इसको 0.4 एक्स्ट्रा यहां पे ऐड करते हैं, राइट. तो दैट इज वन थिंग. दूसरी चीज ये है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे
जो अभी इंडिया में हुआ है, यहाँ पे हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो हो चुका है 2.0, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के दौरान 2.2 हुआ करता था। द मुस्लिम कम्युनिटीज फर्टिलिटी रेट हाउएवर रिमेन्स द हाईएस्ट अमंग ऑल रिलीजियस कम्युनिटी। लुक, ओवरऑल मुस्लिम्स के अंदर फर्टिलिटी रेट कम हुआ है, बट व्हेन इट कम्स टू अनदर, व्हेन वी कंपेयर इट विद अदर रिलीजन, अभी भी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर फर्टिलिटी रेट जो है वो काफी ज्यादा है। लेकिन इसका कारण क्या है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, जिसको अभी हम आपको अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हिंदू कम्युनिटी के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है दैट इज 1.94, जो कि 2015-16 में कितना था, 2.1 था। हिंदू कम्युनिटी में जो पॉपुलेशन, जो फर्टिलिटी थी 1992 में, वो कितनी थी, 3.4, और उस समय मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कितनी थी, 4.4। तो दोनों में ही बेसिकली काफी कम हुआ है। और हमारी कंट्री में जो सबसे लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट है वो है यहाँ पे कितना, देखिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर कितना है, 1.88, सिख कम्युनिटी के अंदर है 1.61, जैन कम्युनिटी के अंदर भी है 1.6, और बुद्धिस्ट कम्युनिटी के अंदर है 1.36। सो व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के अंदर फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा कम है। अब यहां पे बात आती है, व्हाट आर द रीजंस दैट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इंपैक्ट द फर्टिलिटी रेट। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा दैट रिलीजन इज द प्राइम फैक्टर, बट नो, दिस इज एब्सोल्युटली अटर नॉनसेंस। रिलीजन इज नॉट अ फैक्टर here. According to government data and according to experts, the most important factor which impacts are these: literacy, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एक्सेस टू हेल्थ सर्विस। जिस कम्युनिटी के पास ये ज्यादा होता है उस कम्युनिटी के अंदर अपने आप ही फर्टिलिटी रेट कम हो जाती है। एंड देयर आर सो मेनी सर्वेज, सो मेनी डेटा दे शो कि जब हम लोग सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी के पास अभी भी वो सुविधाएं सबसे ज्यादा कम है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज द एजुकेशन, स्पेशली एजुकेशन टू वीमेन। एक चीज यहां पे देखी गई है, देखिए आपको मैं बताता हूं कि द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम वीमेन हु हैव हैड नो स्कूलिंग, जिनकी 2015-16 में कोई स्कूलिंग नहीं थी, देयर वर 32% मुस्लिम वीमेन, अभी उनकी संख्या घट के कितनी हो गई है, 21.9%। इट मींस एजुकेशन और लिटरेसी लेवल अमंग्स द मुस्लिम वीमेन इज ऑल्सो गेटिंग बेटर एंड बेटर। दैट इज ऑल्सो वन रीजन के मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर फर्टिलिटी रेट काफी कम हुआ है। हालांकि पिछले सर्वे से और इस सर्वे के बीच में हिंदू कम्युनिटी के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। पहले इंडिया के अंदर कितना, हिंदूज के अंदर कितना था, 31.4, और अभी है 28.5। यहां पे एक चीज आपको मैं बताता चलूं, जो अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, जैसे जैसे वीमेन का स्कूलिंग लेवल इंक्रीज होता है वैसे वैसे फर्टिलिटी रेट भी जो है कम होने लगती है, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वीमेन डिक्लाइन हो जाते हैं। इस सर्वे में क्या कहा गया, इस सर्वे में यह कहा गया कि ऐसी वीमेन जो 12वीं क्लास तक पढ़ी हैं या 12वीं से ज्यादा पढ़ी हैं, उनकी जो बच्चे पैदा करने की रेट है दैट इज 1.8। लेकिन जो या तो इलिटरेट हैं या 12वीं से कम पढ़ाई की है, उनकी होती है 2.8। इट मींस द लिटरेट अ वीमन, मोर एजुकेशन अ वीमन गेट्स, राइट, द मोर aware that women becomes, not only aware but the decision making power of that woman increases over her body, over her reproduction. That is also one of the most important thing here. एक चीज यहां पे यूज होती है जिसे कहा गया मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन। पिछले सर्वे के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज होते थे देवर ओनली 47.4%। इस बार वो कितना हुए हैं, पिछली बार वो कितने थे, 37.9, और इस बार हुए हैं 47.4%। इट मींस जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं या जो पिल्स होती हैं वगैरह, वो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। यहाँ पे और भी कई सारे रीजंस आते हैं जैसे, और जब हम लोग रूरल एरिया, अर्बन एरियाज की बात करते हैं, रूरल एरिया में जो फर्टिलिटी रेट है वो अभी कितनी है, 2.1, जो कि 1992 में कितनी थी, 3.7। यहां पे जो डिक्लाइन हुआ है वो अर्बन एरियाज में काफी ज्यादा हुआ है। 1992 में अर्बन एरिया में कितना था, 2.7, जो अभी घट के हो गया है 1.6। बिहार और मेघालय के अंदर इंडिया में इस समय हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है, एंड द लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट इज इन अंडमान निकोबार एंड सिक्किम। So these are some of the findings which are done by National Family Health Survey.
And the conclusion that we can come up with from these surveys and the observation which is done by the government only, they say that literacy, use of contraceptives, women education, access to health service, these are the most important determining factors that impact the total fertility rate rather than religion. Because now these services are reaching to the Muslim community very fast, so that is why Muslim community is getting more and more aware about the children per women. So these are the findings done by this whole survey. So we have these three articles. I will provide you the link in the description box in case you want to read all these articles, but the overall concept that we told about, that is the same here, right? And because we have now come of the below the fertility replacement level, so finally India is going to achieve this stability and the balance of our population very very soon. So with this whole thing, I would like to uh, say bye to you. And if you like this video, if you like this information, please like our video. You can share to your friends also, so that they can also know such good information. And if you want future notification, you can please subscribe to our channel. So friends, that is all for the day. Thank you very much. All the best. Jai Hind.